heat out in the middle of session. So you can do one thing, you can drop your query in the chat box and we will take those query at the end of this session. I request to everybody to close your camera and mute your mic so that everybody can hear properly. Anshuman, whatever query you have, you can write it through chat. All right. Hello friends, in this video we'll talk about the tools to improve productivity and profitability. Essentially there are three practices: MRP1, MRP2 and ERP. These practices, they have been working on different times. So basically MRP1 or MRP, the name is Material Requirement Planning. Now, as you can see, the name suggests that this is the planning, okay, according to the requirements of the material. Okay, so what essentially this technique or this method was based on was that they would identify what are the final orders that you need to fulfill. Okay, and these orders in order to get fulfilled would require a set of resources, right? like like there would be components, there would be different subparts, there would be different items to be assembled, so you can call them sub-assemblies. Okay, so there would be different these raw materials required, or subparts, or items and components would be required in order to manufacture the complete product. So in material requirement planning, what the companies would do is to identify what orders they need to fulfill. Then they will backtrack what all resources or what all products are required. Okay, raw material components are required for that, and that is how they would plan. Now this is the very first thing that we will study, which is material requirement planning. Now, as explained, MRP, that is Material Requirement Planning, is a technique which aims to ensure that material resources, okay, and what are these resources? Just as we had discussed, raw materials, bought-in components, okay, in-house sub-assembles. Sub-assembles are smaller products which will finally assemble to make the final product. Okay, so all these resources are made available just before they are needed by the next stage of production or dispatch. Okay, so once again, just because it's theory, so we'll study in such a way that we can remember it just while studying. Okay, so MRP is a technique which aims at ensuring that material resources, okay, and what are these material resources? Raw material, bought-in components, and in-house sub-assembles are made available just before they are needed. Okay, and they are needed by what? By the next stage of production or dispatch. Okay, so the definition of material requirement planning has four aspects. First of all, it is a technique. Okay, and what it does, it aims to ensure that material resources. What are these material resources? Raw material, bought-in components, and in-house sub-assembles. That these resources are made available just before they are needed. And they will be needed by what? Because we are talking about manufacturing. So they will be needed by the next stage of production or dispatch. All right. So this is the definition of MRP. Now what it does essentially is that it controls the system of inventory. All right. So that up-to-date records of the status of a large in inventory can be kept. Okay. They utilize software, okay, to control the system of inventory so that updated records
of the status of a large number of items can be kept. They also take care of the timely phasing of requirements, planned order releases, generation of component level requirements, and rescheduling capability. Now, obviously, when we studied this definition, right, we understood that if we are able to understand that for a particular order, what all resources I need, right, or what all are the requirements, then I will be able to timely phase those requirements. If I know that that raw item A is required, in the very first stage, whereas raw item X is required only after 1 month because it is required in the last stage of production. Okay, so I don't need to invest in X because if I order it right away, then I will also have to spend time, money, and resources on storing it. So I can order X after some time so that it is available just when it is needed, that is 1 month later. But A, the resource which is required right away, I will order it first. So therefore MRP allows you to timely phase the requirements and also in planned order releases. Okay, because you will be able to understand better which order I can release and how to plan in order to ensure that the priority order is fulfilled first. Secondly, generation of component level requirements and rescheduling capability. In case you have to reschedule a particular order fulfillment or something, you will have a better understanding by MRP. Now we will understand how does the MRP system works, as in where all does it take the information from. Okay, so an MRP system works out outputs from there are different kinds of activities. First of all, master production schedule. Secondly, orders for external components, sales and demand forecast, inventory or stock records, and bills of materials. Okay, based on these 5 things, based on these 5 activities or pieces of information that they have, they will take output from these 5 activities, and based on this the MRP will work. All right, like how many orders are there for external components, what would be the sale, how much do you forecast that a particular item is a unit 1. Okay, so it will identify that I need 10 pieces, okay, or 10 quantities of the first unit. All right, and this I will need 5 days from the day of production. So master production schedule will say that okay, first unit I need 10 quantities and at the end of 5 days. Similarly, unit 2 I require 20 quantity because that is probably required double. Okay, and I need this after 7 days or something like that. Okay, so this is what it will tell. It will tell the quantity of each finished unit, okay, which needs to be produced along with the time at which each unit will be
required. Okay. Next is bill of material file. Now this essentially contains information of all the number of sub-assemblies, components and materials required for the final product. Inventory files. Inventory, I think you all would understand. Inventory is a very simple word. It means the details of all the items which are in hand, which you already have. Routing file. Now routing file or routing file, it contains the sequence of operations required. Like I said, first of all, unit 1 is required. Once it is produced, after that you will assemble it with unit 2. Alright. So the sequence of operations required to produce the final product. And master parts file. This is the final one, which contains information about the production time of the sub-assemblies and the components which are produced internally and the lead time for externally procured items. All right. So basically, there will be two ways in which you'll be producing. You'll be getting components and sub assemblies. So if you have to procure item, if you have to get an item from external sources, all right. So what would be the lead time for that? In how much time you will get those resources? Secondly, if there are sub components or sub assemblies which are to be produced internally, then what is the production time for these sub-assemblies and components which are produced internally? This information will be in the master parts file. Okay. So these 5 requirements are the data requirements for MRP. If you remember this, then you will also remember these data requirements. Okay. Just revising very quickly. Data requirements for MRP. First of all, master production schedule, which specifies quantity of each finished unit of products to be produced along with the time at which each unit will be required. Secondly, bill of material file, which contains information of all the sub-assemblies, components and material requirement. Thirdly, inventory file, which contains details of all these items which are in hand. Okay. Next, routing file, route as in the overall sequence of operations required. And finally, Hello? Yeah, can you all hear me? Yes, now it is audible. All right. So yeah, sorry about that. So basically what we are going to do now is अब हम लोग हिंदी में इसको एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टूल्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कैसे हमारे जो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी हुई, प्रोडक्टिविटी हुई, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. जब ये काम शुरू हो रहा था, ठीक है, तब कंपनीज ने ये सोचा कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने का या मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है मटेरियल्स के बेसिस पे. ठीक है, कि मेरे को कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है ना, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, क्या आप सप्लायर से कंटेंट चाहिए होता है, उसके बेसिस पर उन्हें लगा कि ये रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं. और वो सही भी था तब, क्योंकि तब जो है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो मटेरियल हैवी बहुत ज्यादा थी. ठीक है, तो कितने सोर्सेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती.
देयरफॉर जो सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस था प्लानिंग का, दैट वाज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, अब देखिए नाम से क्या है कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है सारी चीजें डिपेंड करती थी आपके मटेरियल्स पे। ठीक है, तो ये क्या टेक्निक थी? ये थी, इट इज अ टेक्निक which aims to ensure that material resources, ठीक है, और ये कौन से मटेरियल रिसोर्सेज होते थे आपके पास? चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे जैसे कुछ कंपोनेंट्स बने बनाए आते थे बाहर से वो कंपोनेंट्स हो, या फिर इन हाउस सब असेंबलीज। नाउ इन हाउस सब असेंबल्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ रॉ मटेरियल मिला के और कुछ कंपोनेंट्स मिला के आप एक सब पार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, आप सब पार्ट बना रहे हैं पूरे प्रोडक्ट का, तो वो हो गया आपका सब असेंबल्स। तो वो टेक्निक जिससे आप इंश्योर करते थे कि सारे मटेरियल रिसोर्सेज चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे रॉ मटेरियल हो, कंपोनेंट्स हो या छोटे छोटे पार्ट्स हो, वो जब हमको जरूरत हो नेक्स्ट स्टेज के, उसके जस्ट पहले ही मिल जाए। मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर मुझे कंपोनेंट बी की जरूरत पड़ेगी 10 अक्टूबर को, तो मैं एग्जैक्टली 9 अक्टूबर तक उस कंपोनेंट बी के लिए जो सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए उनको प्रोक्योर कर लूं, मतलब उनको अपने पास अवेलेबल करवा लूं। ठीक है, यहाँ पर अब क्लियर है? अब समझ आ रहा है लोगों को? हम मेरे को बता देंगे तो मेरे को समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ, ओके। तो एमआरपी टेक्निक होती है जिससे कि हम ये बताते हैं कि भाई हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, कब चाहिए होगा, जब चाहिए होगा, एकदम उसके पहले मेरे पास सारा मटेरियल आ जाए। ओके, अब ये क्या करता है? तो इस तरह से, इस प्रोसेस से, दिस इज फॉर सीएमए फाइनल, एसपीएम बीवी के लिए जो क्लास होती है, सब्जेक्ट है हमारा इवैल्यूएशन टूल्स, पढ़ रहे हैं हम एसपीएम बीवी के। ठीक है, तो ये कैसे करता है? ये इस तरह से सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो आपके पास रॉ मटेरियल स्टॉक में रखे रहते हैं, राइट, या फिर जो भी आपके सब पार्ट्स चाहिए होते हैं आपको, वो सारी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं, उसको सबको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। Okay, so it controls system of inventory so that up to date records of the status of a large number of items in inventory can be kept. अब देखिए ये सब जरूरी क्यों है? इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए होती है क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि देखिए अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स कुछ ज्यादा ही होंगे, ठीक है, तो आपको उनको स्टोर करने की जगह चाहिए होगी, और स्टोरेज और रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट, ये सब चीजें जो है बहुत बहुत महंगी होती है। ठीक है, स्टोरेज का काम करना, इन्वेंट्री रखना, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है। अगर आप लोग रिक्वायरमेंट के पहले एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन उस रिसोर्सेज को लाएगी, तो उनका पैसा जो है कम से कम लगेगा स्टोरेज और मेंटेनेंस में। ठीक है, तो इस तरह से अप टू डेट रिकॉर्ड्स रख सकते हैं और इन्वेंट्री आइटम्स केवल ज़रूरत के टाइम पर आ जाएंगे। ओके, अब एमआरपी क्या करेगा? तो इस तरह से इट टेक्स केयर ऑफ टाइमली फेजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि जब हमको रिक्वायरमेंट होगी तभी हम ऑर्डर कर देंगे सामान को, ऑर्डर रिलीज भी टाइम पे हो जाएगा आपका, और आपको रीशेड्यूलिंग कैपेबिलिटी, मतलब कि कितना सामान कब मंगवाना है कंपोनेंट लेवल पे, वो चीजें बहुत आसानी से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अब एमआरपी सिस्टम आउटपुट कहाँ कहाँ से लेता है? उसको जो ये सारी चीजें करनी है उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, कि उसको कौन से इन्वेंट्री, कौन सा स्टॉक चाहिए, कौन सा स्टॉक पहले से चाहिए रखा हुआ है हमारे पास। दिस क्लास विल बी फॉर अनदर 25-30 मिनट्स। ओके, एंड जो सारे नोट्स हैं, आप लोगों को नोट्स, एक ब्लॉग पोस्ट है जो अभी सत्यम सेशन के बाद शेयर कर देंगे, उस ब्लॉग पोस्ट से आप लोग नोट्स देख सकते हैं।
थैंक यू पार्था। अब ठीक हो जाएगा। तो अब एमआरपी में कहाँ से इंफॉर्मेशन आता है ताकि ये लोग जो हैं इस सारे डेटा को ले पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है हमारा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का क्या मतलब है? ऑर्डर्स फॉर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, मतलब कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स चाहिए हमको एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। सेल्स डिमांड फोरकास्ट, क्या हमारी सेल्स टीम या हिस्टोरिकल बेसिस पे ये कहती है कि अब जो अगला महीना अगर अगस्त है तो क्या अगस्त में मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए प्रोड्यूस कैपेसिटी की, या फिर क्या मुझे केवल 2,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आपका फोरकास्ट होगा उसी हिसाब से आप सामान मंगवाएंगे, या जिस हिसाब से आपके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं उस हिसाब से आप प्रोक्योर करेंगे रॉ मटेरियल्स, उसी हिसाब से तो प्रोडक्शन करेंगे, करेक्ट। और प्रोडक्शन भी है हमारे पास, हमारे को सेल्स का डिमांड भी पता है, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है कि भाई मेरे ऑलरेडी यूनिट में कितना सामान पड़ा हुआ है ना। तो इन्वेंट्री स्टॉक रिकॉर्ड्स क्या क्या कहते हैं कि भाई रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी 5 आइटम्स के लिए हैं। बिल ऑफ मटेरियल, और बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल भी होता है कि सारे जो आपके आइटम्स हैं उसका। तो अब देखते हैं ये क्या क्या चीजें होती हैं एक एक करके। सबसे पहला हमने बोला मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इसमें क्या होता है? इट स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ ईच फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमने बोला था ना कि हमको कौन सा प्रोडक्ट कब चाहिए, तो ये वो बताता है कि हर फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कौन सी क्वांटिटी किस टाइम पे बनी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आपको पूरा प्रोडक्ट ए बनाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल मान लीजिए चाहिए फर्स्ट वीक में, ठीक है। कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए आपके सेकेंड वीक में, ठीक है। इस तरह से जो ये पूरा हमारा शेड्यूल है पूरे प्रोडक्शन का, इसको बोलते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट इज बिल ऑफ मटेरियल फाइल। इसमें होता है सारा इंफॉर्मेशन कि हमको कितनी सब असेंबलीज, कंपोनेंट्स और मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी एक फाइनल प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए। इन्वेंट्री फाइल में बता ही चुकी हूँ, जो जो आइटम्स हमारे पास हैं ऑलरेडी वो। और राउटिंग फाइल, राउट मतलब रूट, रूट को आप क्या जानते हैं कि किस डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ सामान जा रहा है, क्या सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की पहले कौन सा सब पार्टिकल बनेगा, पहले क्या रॉ मटेरियल चाहिए, फिर क्या कंपोनेंट बनेगा, फिर क्या सब असेंबली बनेगी, वो होता है ओवरऑल सीक्वेंस। फाइनली मास्टर पार्ट्स फाइल। मास्टर पार्ट्स फाइल होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन टाइम ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड इंटरनली एंड लीड टाइम फॉर एक्सटर्नली प्रोक्योर्ड आइटम्स। मतलब सॉरी, कि किस टाइम पर आपको कौन सा सब असेंबली चाहिए, सब असेंबली मुझे बनाना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे कोई आइटम बाहर से मंगवाना है, एक्सटर्नली प्रोक्योर्ड आइटम मतलब मुझे बाहर से कोई आइटम मंगवाना है रॉ मटेरियल, तो कितना, व्हाट इज द लीड टाइम, कितने टाइम में वो मेरे पास आएगा, ठीक है। क्योंकि इसी हिसाब से आप रॉ मटेरियल्स बनाएंगे या फिर रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवाएंगे, ताकि जब तक आपको उस आपके पूरे प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में वो चाहिए, तब तक मेरे पास रॉ मटेरियल या सब असेंबलीज आ जाए। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है अभी? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरपी।
जैसे मैंने बताया कि एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन अलग अलग क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में। अच्छा, इफ एवरीवन इज फाइन देन आई विल कंटिन्यू इन 100% हिंदी इटसेल्फ। मतलब जैसे अभी मैं मिक्स लैंग्वेज में बात कर रही हूँ वैसे ही करती हूँ, इंग्लिश में नहीं करते हैं कवर। इज दैट फाइन विद एवरीवन? ठीक है, ओके। तो देखिए, एमआरपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो चाहते थे कि कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है ना, कंप्यूटर के थ्रू हम ये सब कुछ डिटरमाइन कर पाए कि क्या प्रोडक्ट हमें बनाना है किस टाइम पर, ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट टाइम। अगर आपको कंपनी बी का ऑर्डर अक्टूबर 29 को खत्म करना है और आपको उसके लिए 15 दिन लगते हैं, जबकि कंपनी बी है जिसका ऑर्डर आपको 15 अक्टूबर को खत्म करना है और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो आप पहले कंपनी बी के ऑर्डर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कंपनी ए का ऑर्डर बाद में चाहिए तो उसका आप टाइम देख लेंगे कि अच्छा 1 महीने का है, तो मैं सितंबर 15 से उसको बनाना शुरू कर दूंगा, है ना। मतलब ये जो प्लानिंग है, किस तरह से आप किस प्रोडक्ट को कब बनाएंगे, ये हम मैनेज करें। अगर ह्यूमंस करेंगे तो एरर प्रोन रहता है, ठीक है। तो द आइडिया वाज कि कंप्यूटर को यूज करके ये प्लानिंग हम करें, ठीक है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ सब असेंबलीज। सब असेंबलीज, जैसा मैंने बताया कि वो जो सब पार्ट्स हैं जो हमें पहले बनाने हैं ताकि उनसे पूरा प्रोडक्ट बने, वो कितनी सब असेंबलीज बनानी है, क्या हमको अगर कोई वेस्टेज होगा उसके लिए कितना फैक्टर रखना है, कितने टाइम में बनाना है, वो सब। Determine the requirements for material based on an up to date bill of material। देखिए, बिल ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि सारी सब असेंबलीज कंपोनेंट्स और मटेरियल रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो होता है बिल ऑफ मटेरियल फाइल में। तो जब ये अप टू डेट होगा तभी आप आराम से रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल निकाल पाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें हम कैसे डिटरमाइन करना चाहते हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू। इसके अलावा एमआरपी में और क्या एम रहता है कि हम इन्वेंट्रीज, कितना सामान मेरे पास ऑलरेडी है, इन स्टॉक व्हाट ऑल रॉ आइटम्स और कंपोनेंट्स आई हैव, ठीक है। डब्ल्यूआईपी मतलब क्या मेरी कुछ सब असेंबलीज हैं जो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, जिन पर क्या ऐसा है कि प्रोडक्शन जो है मेरे कंप्लीट यूनिट का वो ऑलरेडी एक सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है। क्या बैच साइज है, बैच साइज मतलब कि कितने नंबर्स बनाने हैं, कितने बैचेस बनाने हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग लीड टाइम्स, ओवरऑल मुझे अगर 29 अक्टूबर को ऑर्डर शिप आउट करना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना टाइम लगेगा एक एक चीज के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर मेरे को कस्टमर ने बोला था कि ठीक है तुम मेरे को 5 नवंबर को पहुंचा दो, तो फिर उसको शिपमेंट में कितना टाइम लगेगा, राइट। ऑल दीज थिंग्स शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कंप्यूटर्स। और ओवरऑल जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फाइनली होगा क्या? ओवरऑल ये होगा कि जो भी ऑर्डर आया है आपका, आप ऑर्डर फुलफिलमेंट आराम से कर पाएंगे, कोई भी डिले नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है सामान जो ऑर्डर करेंगे, इन्वेंट्री जो मंगवाएंगे, वो मंगवाएंगे आप ऑर्डर रिसीव्ड या फोरकास्ट के बेसिस पर, रादर देन कि मेरे पास जस्ट बिकॉज एक आपके पास कोई रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, क्या उसकी जरूरत आगे पड़ेगी भी या नहीं, ठीक है। अगर केवल स्टॉक खत्म हो रहा है इसलिए मंगवा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको आगे वो वाला ऑर्डर अभी अगले 3 महीने तक मिले ही नहीं, तो आपको उस रॉ मटेरियल की जरूरत ही ना पड़े। वो होता था हिस्टोरिकली, ठीक है। एमआरपी क्या कहता है? एमआरपी कहता है कि जब तुम्हें ऑर्डर मिले और तुम्हारा इन्वेंट्री कम हो रहा हो किसी रॉ मटेरियल का, तो तुम्हें पता है कि आगे मुझे ऑर्डर के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, तब जाके तुम उसको मंगवाओ। ये बात समझ आई आप लोगों को? हिस्टोरिकली, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हिस्टोरिकली जब हम बात करते थे सामान मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो केवल स्टॉक लेवल इंडिकेटर्स के बेसिस पर मंगवाया जाता था। मान लीजिए रॉ मटेरियल एक्स है, ठीक है, रॉ मटेरियल एक्स इज देयर एंड यू
फील कि एक्स की स्टॉक जो है मेरे पास मेरे वेयर हाउस में खत्म हो रहा है, एक्स की केवल 2 यूनिट्स बची हैं, यूजुअली 10 यूनिट्स चाहिए होती हैं, तो अब मैं एक्स को ऑर्डर कर देता हूँ। ऐसा हो सकता था कि एक्स जिस प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है, जिस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट एक्स से बनता है उसका ऑर्डर ही ना आया आपके पास अगले 3 महीने। तो व्हेन यू विल ऑर्डर दिस रॉ मटेरियल जस्ट बेस्ड ऑन द स्टॉक लेवल, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा बच रहा है, आपको स्टोरेज भी करना पड़े, मेंटेन भी करना पड़े और कोई फायदा भी ना हो। देयरफॉर एमआरपी में क्या करते हैं कि आपको पता है कि एक्स जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल हमको चाहिए होता है ओनली आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो हम उसे अभी ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, सो यू विल ऑर्डर रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स और यू विल प्रोड्यूस दीज थिंग्स बेस्ड ऑन या तो जो ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है या फिर जो आपको पता है कि भाई फोरकास्ट क्या होता है, कब कितना ऑर्डर आता है किसी चीज का। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देखिए, इट डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिमांडेड। जैसा मैंने बताया ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि एमआरपी को यूज करके हम टाइमली ऑर्डर कंप्लीशन कर पाए। तो वो क्या क्या स्टेप्स में होगा, सबसे पहले आप क्वालिटी और टाइमिंग मेंटेन कर पाएंगे फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, उसके बाद टाइम फेज रिक्वायरमेंट्स, जैसा कि हमने कहा कि अगर हम लोग फोरकास्ट के बेसिस पे चलेंगे और प्रॉपर प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से बात करेंगे, हमने किया था ना मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से बात करेंगे तो टाइम फेज रिक्वायरमेंट्स जो है मेरी, कब मुझे कौन सा मटेरियल, कौन सा कंपोनेंट और कौन सा सब असेंबली अपने प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो एक प्रॉपर टाइम होराइजन पे आपको पता चल जाएगा। It computes the inventories, work in progress batch sizes and manufacturing and packaging lead times। अब देखिए यहाँ पर मैंने, आप ध्यान देंगे तो मैंने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को इसी तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। ठीक है, थ्योरी पार्ट है ये, तो हमको थोड़ा याद करने की टेक्निक्स भी आनी चाहिए। ठीक है, आप इसको देखेंगे जब ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, तो जब आप इन नोट्स को देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि एम है अगर व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट व्हाट टाइम, तो टाइम की बात हो रही है तो इसलिए टाइमिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ सब असेंबलीज, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट कब किस चीज की पड़ती है, मटेरियल, कंपोनेंट एंड सब असेंबली की। थर्ड पॉइंट यहाँ पर था कैलकुलेट इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस एंड बैच साइजेस। ठीक है, एंड सेम पॉइंट यहाँ पर भी है कि एमआरपी क्या करता है, एमआरपी कंप्यूट करता है इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, बैच साइज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग लीड टाइम। तो देखिए ऐसे देखकर अगर आप पढ़ेंगे और क्लास भी अगर अटेंड करेंगे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एनरोल्ड इन द कोर्स, तो इसी तरह से पढ़ाया गया है कि आपको याद करना थ्योरी पार्ट या जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है वो आपके लिए काफी इजी हो जाए। ठीक है, फाइनली कंट्रोल इन्वेंट्री की बात हमने एम में भी की थी, यहाँ पर भी वही है कि इट कंट्रोल्स इन्वेंट्री बाय ऑर्डरिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स इन रिलेशन टू द ऑर्डर्स रिसीव्ड। करेक्ट, ये मैंने भी बहुत डिटेल में समझाया था, rather than ordering them from stock level point of view. Okay, so this covers the aims and objectives of MRP. अब कोई डाउट है अभी तक तो बताइए। If any one of you has any doubt, we can cover it. Otherwise, we will continue from here in our next session. अच्छा, जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ आया? उतना भी समझ नहीं आया क्या? सब लोग क्लास अटेंड करते हैं और ध्यान नहीं देते क्या? चलिए ठीक है, अच्छा इतना तो सबको समझ आ गया, चलिए गुड गुड। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नोट्स के लिए सत्यम, कैन वी सेंड द ब्लॉग पोस्ट टू एवरीवन? Yeah, just 1 minute. या
तो इस ब्लॉग पोस्ट में देखिए अभी शायद नोट्स नहीं होंगे, नोट्स मेरे ख्याल से थोड़ी देर में या फिर कल तक अपडेट हो जाएंगे, या कल संडे तो हो सकता है टीम काम ना कर रही हो, थोड़ा सा रेस्ट उन्हें भी चाहिए। तो डोंट वरी, जब आप लोग बस ये ब्लॉग पोस्ट जो है अपना बुकमार्क करके रख लीजिए। एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कहूंगी कि आप लोग हाँ, नोट्स जैसा बताया अभी, सत्यम इज शेयरिंग द ब्लॉग पोस्ट लिंक। ओके, नहीं तो टेलीग्राम पे जो है ना, आप लोग टेलीग्राम पे वी कीप अपडेटिंग दीज नोट्स, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दोनों के लिंक शेयर किए हैं पहले भी, दोबारा भी भेज देती हूँ। वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से जो भी सारे नोट्स हैं, जो भी सारे फ्री रिसोर्सेज, फ्री सेशंस का शेड्यूल है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाय द वे, मुझे पता नहीं है कि आप लोग कितना अवेयर हैं, बट सुपर प्रॉप्स Just हैज रिसेंटली स्टार्टेड दिस 100% गारंटी वाले कोर्सेज। क्योंकि कॉमर्स में ऐसा होता है कि सब स्टूडेंट्स को इतना टाइम उनका लग जाता है, उनको पता नहीं होता कि कौन सी क्लासेस अच्छी हैं नहीं है, प्राइस का इतना वॉर होता है कि सब सोचते हैं अच्छा जो थोड़ा कम में कोर्स मिल रहा है ना वो ले लेते हैं। सुपर प्रॉफ्स ने दे नो कि उनके कोर्सेज से लोगों को कितना हेल्प मिलता है, सो दैट इज व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज विद 100% पास गारंटी। तो जैसे आप इंटर या फाइनल का ग्रुप लेवल कोर्स लेंगे, तो दे आर श्योर ऑफ देयर कोर्सेज। एंड इन केस आपको मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में, आप इमीडिएट अटेम्प्ट में अगर यू आर नॉट एबल टू सक्सीड, पास नहीं हो पाते आप, तो यू कैन क्लेम योर फीस बैक, मनी बैक, या फिर एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। तो डू इंक्वायर अबाउट दोज कोर्सेज, काफी बेनिफिशियल है, फ्री सेशंस भी करते रहते हैं, एंड सच स्ट्रेटजीज टू हेल्प स्टूडेंट्स काफी सारी रहते हैं। अशोक, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? आज ऑलरेडी नेक्स्ट सेशन भी अभी शेड्यूल्ड है, तो वी नीड टू रैप इट अप। कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं ये हम कवर करेंगे। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए चैनल, तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट सेशन कब होगा। सत्यम, कैन वी गिव देम एनी आइडिया कि कब होगा नेक्स्ट सेशन? या एक्चुअली 7:30 PM तो डेली होता है ना फाइनल लेवल स्टूडेंट्स के लिए सेशन? राइट राइट, 7:30 पे फाइनल लेवल के लिए डेली सेशन होता है। यू विल गेट नोटिफाइड थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, और जो हमने व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है ना, उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इसके। ये नेक्स्ट सेशन प्रॉब्ली इन कमिंग वीक में होएगा। नहीं तो आप 7:30 PM मंडे टू सैटरडे सेशंस होते हैं, 7:30 PM आके ज्वाइन भी कर सकते हैं, देख लीजिए कौन सा सेशन आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं। काफी आशीष देवलासी सर, दिव्य मिगलानी सर, सब लोग, संजय वेल्किन सर, काफी सेशंस होते हैं, अचल गुप्ता सर भी कॉस्टिंग वगैरह पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स काफी, हमारे पास तो ईमेल्स आते रहते हैं कि दे फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। रीना, आई एम नॉट श्योर, यू विल हैव टू चेक विद देयर टर्म्स, बट जहाँ तक मुझे पता है इट्स 50% रिफंड, बट बेटर है कि आप एक बारी कॉल करके कंफर्म ही कर लीजिए उनसे, ठीक है? एंड दूसरी बात ये है कि जो कोर्स के बारे में इतना श्योर है ना कि मतलब वो रिफंड कर देंगे अगर पढ़ाई नहीं होगी, तो ऐसे कोर्सेज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को रिफंड मांगने की नौबत ही नहीं आएगी, आप लोग के क्लियर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉग पोस्ट हमने शेयर कर दी है फॉर नोट्स। ओके, सत्यम, इज देयर एनी ब्लॉग पोस्ट फॉर द रिफंड कोर्सेज आल्सो? कोई है ऐसा? फॉर द रिफंड, हाँ, जो ये गारंटी वाले कोर्सेज हैं। जस्ट अ सेकंड। इससे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी, राइट? उन्हें ज़्यादा इंक्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई डाउट्स है आपके तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। अशोक, आई लाइक इट दैट यू हैव आस्क्ड दिस पॉइंट, एंड आई विल डेफिनेटली कवर इट इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। एनी अदर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक मुश्किल लगता है, नॉट जस्ट दिस चैप्टर, नॉट जस्ट दिस सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट में भी, तो यू कैन राइट टू अस ऑन support@superpros.com। For ठीक the है? return for this particular thing, I can't find this blog post. We are asking for this return 100% return scheme, right? हाँ हाँ, आप एक बार अपना मेल चेक कर लो। Yes, yes.
ठीक है, तो आप सपोर्ट पे अपना जो भी आपके कोई क्वेरीज हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको चाहिए कवर करना है, वो हमें बता दीजिए. वी विल डेफिनेटली होस्ट अ फ्री सेशन ऑन दैट. कोई भी प्रोफेसर से, CFR हो सब्जेक्ट, कोई कॉस्टिंग का सब्जेक्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए हो, यू कैन डेफिनेटली राइट टू अस. गुप्ता जी, एग्जाम पोस्टपोनमेंट देखिए हम लोग फ्यूचर में तो नहीं देखते हैं, ठीक है. वी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लुक इनटू द फ्यूचर. लेकिन अगर आप लॉजिकली एंड रियलिस्टिकली सोचे, तो जब मार्च अप्रैल में जो कोविड का हाल था, राइट, इट वाज अ कंप्लीटली अननोन फैक्टर. बट टुडे, आज की डेट में, ICMR, ऑल द डिफरेंट अथॉरिटीज, they are well aware of all the things that we need to take care of in these covid times. ठीक है, तो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि कितने सारे एग्जाम्स हो चुके हैं ऑलरेडी. स्कूल्स खुलने की बातें हो रही हैं. ऑलमोस्ट लाइफ के लिए सब कोशिश कर रहे हैं बैक टू ट्रैक लाने की. ठीक है, किसी भी ऑफिशियल बॉडी ने बहुत ही क्लैरिटी से ये बताया है कि एज ऑफ नाउ एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं है. और बाकी एग्जाम्स भी हो रहे हैं, IIT JEE के हुए, मेडिकल के हो रहे हैं. ठीक है, इनफैक्ट अब तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुलने की बात भी हो रही है. काफी खुल भी चुके हैं कुछ कुछ, और आगे के खुलने की बात हो रही है. तो जहाँ अगर हम लोग मतलब लॉजिकली या रीजनेबली सोचें, तो काफी कम चांसेस हैं कि एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होंगे. बट ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डेफिनेटली पोस्टपोन नहीं होंगे. बट क्योंकि लाइफ इज कमिंग बैक टू नॉर्मल ट्रैक ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स, तो इसलिए चांसेस ऑफ एग्जाम्स पोस्टपोनिंग स्पेशली ड्यू टू कोविड आर वेरी लेस. रीना, एग्जाम चाहे एक दिन हो या कितने दिन, एग्जाम तो मतलब आपको एक बार बाहर निकलना है तो निकलना ही है. इनफैक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स जो थे CSET के, आपको शायद पता होगा, वो तो हुए ही ऑनलाइन. ठीक है ना, तो वो तो अभी भी कैंसिल नहीं हुए थे, उनके तो अटेम्प्ट हुए ही हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियल बॉडीज विल फर्दर डिले द एग्जाम्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उन ऑफिशियल बॉडीज के लिए भी आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम टाइम आ गया है तो क्या पढ़ें, कोई बात नहीं गुप्ता जी, क्रैश कोर्सेज है. सुपर प्रॉफ्स के पास भी क्रैश कोर्स है, अलग अलग जगह क्रैश कोर्स है. एक ग्रुप ले लीजिए जिसमें आपको ज्यादा आइडिया है, ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन पता है, और उस ग्रुप को क्लियर करने की कोशिश कर लीजिए. अभी एग्जाम टाइम नहीं आया है, 2 महीने हैं. आप अच्छे से अगर मन लगा के पढ़ेंगे 7-8 घंटे, तो क्या मतलब, मुझे लगता है 4-5 घंटे भी ऑन अ डेली बेसिस, बट अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों का क्लियर अभी भी हो सकता है. 2 महीने तो इनफ टाइम है. और कौन क्या बोल रहा है? देखिए, जब कम टाइम होता है ना, तो अगर आपके पास गाइडेड कोचिंग होगी, ठीक है, मॉड्यूल सफिशिएंट है क्या, अगर मैं वही कहूंगी कि अगर आप गाइडेंस के थ्रू पढ़ेंगे तो बेटर है. वैसे हाँ, ऑब्वियसली मतलब एग्जाम के लिए आप पूरा ऑफिशियल मॉड्यूल अगर पढ़ के जा रहे हैं ICMI का, तो डेफिनेटली इट इज सफिशिएंट. वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही. ठीक है रीना, एक ग्रुप देना है या दोनों, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है ऑलरेडी. ठीक है, आपके पास कितना टाइम है, और आप अभी फुल टाइम केवल पढ़ाई कर रहे हैं, या इस कोच मतलब इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने कॉलेजेस, स्कूल्स, जॉब एटसेट्रा कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप 7 महीने पहले से शुरुआत कर देते हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, या फिर आप जॉब के साथ कर रहे हैं, आप अच्छा खासा टाइम लगा सकते हैं, और आप दोनों ग्रुप भी दे सकते हैं आराम से, है ना. लेकिन अगर आपके कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत आती है, आप जो भी पढ़ाई करें वो अच्छे से पढ़ें, और वो एग्जाम अच्छे से दें, वो ज्यादा बेटर है. राइट, तो ये कोई एक एक सिंपल फंडा नहीं है कि मैं किसी से भी बोल दूं कि भाई तुम तो मतलब ये क्या बोलते हैं, एग्जाम को दोनों ग्रुप ही दो या एक ग्रुप ही दो. ऐसा नहीं है, ये आपको खुद देखना चाहिए. पर कभी भी माइंड ना दो जगह मत रखिए. अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है, मैं केवल एक ग्रुप पहले पढ़ के क्लियर करूंगी ताकि मेरे को अपनी सक्सेस हाथ लग जाए, और फिर मैं दूसरा ग्रुप क्लियर करूंगी, तो दैट इज अ वेरी वैलिड स्ट्रैटेजी. ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पास रेट जो है थोड़ा कम रहता है.
इन एग्जाम्स में, है ना। हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाना है, हमें दूसरों को देख के डरना नहीं है और दूसरों से हमें किसी बात का कंपटीशन नहीं करना है। हमें ये है कि अगर मुझे एक ग्रुप समझ आ रहा है, उसके 4 सब्जेक्ट्स ही मेरे लिए इनफ हैं, तो मैं वो अच्छे से पढ़ के वो पहली बार में क्लियर कर लूं और फिर मैं आगे का नेक्स्ट ग्रुप अगले अटेम्प्ट में देख लूं। लॉ में स्कैनर पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे क्या? देखिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट लॉ, पर ये क्वेश्चन जो है आपका दिव्य मिगलानी सर अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो आप अगेन यू कैन राइट टू सपोर्ट, कॉल कर सकते हैं सुपर प्रॉफ्स को एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दिस गाइडेंस। बट जैसा मैंने बताया, मॉड्यूल पढ़ेंगे तो मॉड्यूल इज बेटर, स्कैनर्स मुझे लगता है थोड़ा उससे थोड़ा सा कमी रह सकती है आपके प्रिपरेशन में। Ma'am, please have one session for economic efficiency chapters, mainly problems. Satyam, can you note this down? Ashok wants one session on economic efficiency chapters, mainly problems चाहिए उनको, theory नहीं, ठीक है? We can probably have that session somewhere in the coming week. I think Satyam can be done. Right. Okay. Satyam, do we have the next session planned for this one? MRP वाला continued कब होगा? In coming week, अच्छा, तो definitely नहीं, in coming week में definitely. Okay. ठीक है. All right. If there's nothing else, then I would like to take your leave. कोई question है तो बता दीजिए. If there is any other request, you can let us know. All right. I hope you liked the session today. इसकी YouTube recording भी मिल जाएगी, ठीक है, and notes, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, notes भी मिल जाएंगे shortly. So thank you. I मतलब अच्छा लगता है जब आप लोगों को कोर्स अच्छे से समझ आता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑल प्रोफेसर्स टीच। सुपर प्रॉफ्स का एक वीडियो भी है, व्हाई आई टीच करके। तो यही है कि जब स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलता है तो दैट इज द रियल विन ऑफ प्रोफेसर्स। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वीकेंड पे ये वीडियो जब पब्लिश हो जाएगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट करेंगे यूट्यूब रिकॉर्डिंग, आप क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफ्स का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्यम, एक बार हम सुपर प्रॉफ्स का चैनल का लिंक दे दें, ठीक है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपके पास जो जो वीडियोस होंगी, काफ़ी फ्री रिकॉर्डिंग्स और काफ़ी फ्री सेशंस होते हैं, वो मिल जाएंगे। नहीं तो जो ब्लॉग पोस्ट है उसको भी आप अगर बुकमार्क करके रख लेंगे तो ब्लॉग पोस्ट में भी आई थिंक वीडियोस के लिंक्स अपलोड होते हैं। और कुछ भी ना मिले ना तो जो ईमेल मैंने बताया ना, support@superprofs.com, उस पे ईमेल लिख दो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ना मिले तो नाम लिख देना भी, जूही गुप्ता मैम ने बोला था कि उनको रिकॉर्डिंग चाहिए। ये चैनल है, बाकी सब्सक्राइब कर लोगे आप तो ज़्यादा बेटर है। खाली ये वाला सेशन नहीं, जो भी फ्री सेशंस होते हैं, जितने भी फ्री वीडियोस आते हैं, डेमो वीडियोस, पढ़ाई वाले वीडियोस, काफ़ी सारे गाइडेंस वीडियोस आते हैं, स्पेशली अब अक्टूबर है तो जैसा आप लोग पूछ रहे हो ना कि 2 महीने में पढ़ाई कैसे करें, तो वो वाले वीडियो सेशंस भी अब जल्दी ही आने वाले हैं कि भाई 2 महीने में कैसे एक सब्जेक्ट क्लियर कर लें, कॉस्टिंग के लिए क्या क्या पढ़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड वेरी क्विकली, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, it's been a wonderful audience. Thank you, Satyam. Thank you everybody. Thank you.